ઓમ શાંતિ. આજ 18 એપ્રિલ 2021ની અવ્યક્ત રિવાઇઝ મુરલી. રિવાઇઝ તારીખ છે 14 ડિસેમ્બર 1987. આજે બાબાએ હરેક આત્માની અંદર મુખ્ય 3 વિશેષતાઓની વાત કરી છે કે એ 3 વિશેષતાઓ જરૂરી છે. એ વિશેષતાઓ છે, પહેલી, જ્ઞાની તો આત્મા, માના સદાયની સેવામાં સહયોગી સાથે ચાલવાવાળા. બીજા છે યોગી તો આત્મા, કે જે હર કદમની અંદર બાપના સાથનો અનુભવ કરવાવાળા. અને ત્રીજા છે બાપ સમાન કર્માતીત, માના સદૈવને બાપની સાથે સાથે ચાલવાવાળા. તો બાબાએ હરેક આત્માને કહ્યું છે કે આ ત્રણેય વિશેષતાઓ હરેકની અંદર જરૂરી છે. તો બાબા ચેકિંગ કરાવે છે કે ક્યાં સુધી આ 3 વિશેષતાઓ આપણી અંદર રહેલી છે. બીજું, આજે બાબાએ મુરલીની અંદર સંગમયુગનું મહત્ત્વ બતાવ્યું છે કે સંગમયુગ કલ્યાણકારી યુગ છે, સંગમયુગ વરદાની યુગ છે. અને સંગમયુગમાં બાબા સંપૂર્ણ વરદાની મૂરત બની, રહમ દિલ બની અને વરદાનો આપતા રહેતા હોય છે કે જેમાં એક કદમની પદમ ગુણા પ્રાપ્તિ થાય છે. સંગમયુગ દરમિયાન કોઈ હિસાબ કિતાબ રાખવામાં આવતો નથી. તો આજની મુરલીની અંદર બાબાએ સંગમયુગનું મહત્ત્વ અને સમયની વિશેષતા બતાવી છે અને સાથે સાથે આત્માઓની અંદર જરૂરી બ્રાહ્મણ જીવનની જરૂરી 3 વિશેષતાઓની બી વાત કરી છે. તો બાબા ચેકિંગ કરાવે છે કે સંગમયુગમાં જે વરદાનો આપી રહ્યા છે બાબા, તો આપણે એમાંથી કેટલા પ્રાપ્ત કર્યા અને આ 3 વિશેષતાઓને આપણા જીવનમાં કેટલી ધારણ કરી. તો આવો આપણે સાંભળી આજની મુરલી. संगमयुगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं. संगमयुगी ब्राह्मण जीवन में 3 मुख्य विशेषताओं. आज बाप दादा अपने सर्व सदा साथ रहने वाले. पहले कौन से? सदा बाप को साथ रखने वाले, सदा साथ का अनुभव करने वाले. और दूसरे सदा सहयोगी. और तीसरे सेवा के साथी बन सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो जा रहे हैं. माना बाबाना बाळको छे जे बी छे, जे बी क्वॉलिटीमां आवे छे, पण बधा बाबाना बाळको छे. तो बाबा हरेक बाळकोनी अलग अलग विशेषताओ जोईने खुश थाय छे કે કોઈ એમને સદા સાથ રાખે છે, કોઈ માત્ર સેવામાં સહયોગી બને છે, કોઈ સેવામાં સદા સાથ લઈને ચાલે છે. તો સાથ रहने वाले अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं. साथ रहने वाले माना सहज स्वतः योगी आत्माएं. और सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले. सेवा में सहयोगी बने साथी बने चालवा वाला ए छे ज्ञानी तो आत्माएं, अर्थात सच्चे सेवादारी. साथ चलने वाले अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं. અને બાબાની સાથે ચાલવાવાળા કોણ હોય? બાપ સમાન और કર્માતીત. કારણ કે કર્માતીત માના એવી સ્ટેજ છે કે સંપૂર્ણ કર્મ કરતા બી ઉપરામ જેની સ્થિતિ હોય ને એને કર્માતીત કહેવાય. અને એ કર્માતીત અવસ્થા સદાય બાપની સાથે ચાલવાવાળા હોય. तो बाप दादा सभी बच्चों में यह 3 विशेषताएं देख रहे हैं कि तीनों बातों में कहाँ तक संपूर्ण बने हैं. कोई ज्ञानी तो आत्मा ज बने छे, तो कोई ज्ञानी पछी योगी भी बनी गया छे,
અને કોઈ એવી આત્માઓ છે કે જે બાપ સમાન બી બની ગઈ છે. તો બાબા અલગ અલગ પ્રકારની આત્માઓને જોઈ બાબા ચેક કરે છે કે કઈ આત્મા ક્યાં સુધી संपूर्ण बने छे. संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, यह तीनों ही आवश्यक है. आ त्रणेय विशेषताओं जरूर है. ज्ञानी तो आत्मा भी जरूरी है, योगी तो आत्मा की विशेषताएं जरूरी है, तो बाप समान कर्मातीत आत्मा भी जरूरी है. बाबा के एक एक विशेषता एक एक नी अंदर नहीं, પણ આ ત્રણેય વિશેષતા એક આત્માની અંદર બાબા જોવા માંગે છે. એક એક આત્માની અંદર, હરેકની અંદર બાબા કહે છે જ્ઞાન તો લઈ રહ્યા છો તો જ્ઞાનની સાથે સાથે યોગી બી બનો, અને યોગીની સાથે સાથે એવા કર્માતીત બી બની જાઓ કે સદાય ઉપરામ સ્થિતિ રહે और बाप समान बनी जाओ. तो योगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा और बाप समान कर्मातीत आत्मा, इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता की कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी बनना अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना. बाबाए कह્યું एक भी विशेषताની कमी हशे तो जे ब्राह्मण जीवनનું सुख છે, ब्राह्मण जीवनની જે પ્રાપ્તિ છે એનાથી વંચિત રહી જશો. માટે ત્રણેય વિશેષતાઓ જરૂરી છે. क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं. અને બાબા તો શું ઈચ્છા રાખે કે મારા બધા જ બાળકોને હું સંપૂર્ણ વરદાન આપું. એવું નહીં કે એક આપું ને એક ના આપું. બાબા તો બધા જ વરદાન આપવા માંગે છે. ખાલી આપણે વિશેષતાઓથી સંપન્ન બનીને આપણી પાત્રતા બનાવવાની છે કે આપણે વરદાનોને ગ્રહણ કરી શકીએ. ऐसे नहीं कि यथाशक्ति योगी भव. बाबाने એવું તો ક્યારે વરદાન નથી આપ્યું યથાશક્તિ યોગી ભવ યા યથાશક્તિ જ્ઞાની તું આત્મા ભવ. હા, બાબા એવું વરદાન આપે છે કે તમારી શક્તિ હોય એટલા યોગી બનો, તમારી શક્તિ હોય એટલા જ્ઞાની બનો. નહીં, બાબા તો સંપૂર્ણ યોગી, સંપૂર્ણ જ્ઞાનીનું વરદાન આપે છે. ऐसा वरदान कभी नहीं देते. साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है. आ संगम युगनो समय भी केवो छे? वरदानी समय छे. एक एक सेकंड अनमोल छे અને એક એક સેકન્ડમાં કંઈ ને કંઈ પ્રાપ્તિ સમાયેલી છે. क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं. आ संगम युगમાં જ વરદાતા બાપ આવીને વરદાન વેચી રહ્યા છે. માટે સંગમ યુગનું એક એક સેકન્ડ અનમોલ છે. वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया. इस समय को यह वरदान है. सर्व प्राप्तियों में भी संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है. आ संगम युगनो समय एवो समय छे कि सर्व प्रकारनी प्राप्तिओं आ समय ज थती होय छे. संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय. बाबा बधी प्राप्ति भी करावे छे. तो अपनी स्थिति ने संपूर्ण बनावी होय तो ए समय भी संगम युगी समय छे. और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते वा जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है. लेकिन इस वरदानी समय पर
एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज सहयोग प्राप्त होता है। सारा सृष्टि चक्रनी अंदर આપણે જે બી કર્મ કરીએ છીએ એવું ફળ મળે છે, મને જૈસા કર્મ વૈસા ફલ સૃષ્ટિ ચક્રમાં સંપૂર્ણ સૃષ્ટિ ચક્ર દરમિયાન મળતું હોય છે। પણ આ સંગમ યુગ એવો સમય છે કે આપણે એક કર્મ કરીએ છીએ, એક કદમ ઉઠાવીએ છીએ, જેમાં બાપની પદમ ગુણા મદદ મળતી હોય છે, માટે વિશેષ સમય છે। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त होता है प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आ जाते हैं। सतयुग में तो शू छे कि संगम युग में जे जमा कर्युं हतुं ए सतयुग त्रेता में खाता खाता नीचे उतरता आव्या। कला कम होती जाती है, एक युग पूरा होने से कला भी 16 से 14 हो जाती है। खाली एक युग पूरो थाय छे तो एमाय 16 कला मांथी 14 कला वाला बनी गया। लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की जो 16 कला संपूर्ण बने? तो 16 कला थी संपूर्ण बनवानी प्राप्ति कया समय थाय छे? तो आ एक संगम युग दरमियान 16 कला संपन्न बनी शकाय छे। वह प्राप्ति का समय यह संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में तीनों ही संबंध से 3 रूप में विशेष खुले भंडार अपना भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। बाबा 3 रूप थी अपने आगे भंडारा खोली रह्या छे। तो बापना रूप थी वर्षानो भंडार खोल्यो छे, शिक्षकना रूपमां ज्ञाननो भंडार, पढ़ाईनो भंडार खोल्यो छे अने सद्गुरुना रूपमां वरदानोना भंडार खुल्ला करी दीधा छे। तो बाबा 3 रूपथी भंडार खुल्ला करीने बैठा छे। जितना उतना का हिसाब नहीं रखते। अत्यारे बाबा ए हिसाब नहीं राखता कि जेटलू करशो एटलू मळशे। बाबा कहे छे जेटलू लेवुं होय एटलू लई शको छो। एक का पदम गुणा का हिसाब है। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसे नहीं कहते। बाबा अत्यारे ए नथी कहेता कि तमे मेहनत करो ने फळ भोगो। अत्यारे तो एक कर्म करशो तो बी पदम गुणा मदद बाबा करी देता होय छे। लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। संगम युगनो बाबा महत्व समझावी रह्या छे कि संगम युग एटलो वरदानी समय छे कि आ समय स्वयं भगवान रहम दिल बनी, दाता विधाता बनी अने आपणी साथे सर्व प्रकारना संबंध जोड़ी हर सेकंडे मददगार बनता होय छे। खाली आपणे कयुं काम करवानुं छे? एमने याद करवानुं। बाकी सर्व प्रकारना अनुभवों, सर्व प्रकारनी प्राप्ति, सर्व प्रकारनी मदद बाबा हर सेकंडे करावता होय छे। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बन जाते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं।
थकी हुई हैं, इसीलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। કારણ કે બાબાને ખબર છે કે આટલા બધા વર્ષોથી મહેનત કરીને એટલી આત્માઓ નિર્બલ બની ગઈ છે, દુર્બલ બની ગઈ છે, થાકી ગઈ છે, તો બાબા સેકન્ડે મદદગાર બને છે કે કંઈક ધક્કો મારે તો આગળ જતું રહે, તો બાબા મદદગાર બને છે આપણને એક સ્ટેપ ઉપર ચઢાવવા માટે। स्वयं ऑफर करते हैं कि सर्व प्रकार के बोझ बाप को दे दो। बाबा कई ऑफर करे छे, बधी जिम्मेवारीओ, बधी चिंताओ, जे पण माथा उपर टोकरी होय, जे पण बोझ होय ए बाबाने सौंपी दो। बाबा लेवा तैयार छे। बोझ उठाने की ऑफर करते हैं। बाबा कहे छे हूँ उठावी लईश, तमे हल्का बनी जाओ। भाग्य विधाता बन, नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए, भाग्य की लकीर खींचने की कलम आपके हाथ में देते हैं। કેટલો અત્યારે ઊંચો સમય છે કે આપણું ભાગ્ય લખવાની કલમ બી બાબાએ આપણા હાથમાં આપી દીધી છે, પણ ભાગ્ય ક્યારે લખી શકશો? એક હાથમાં કલમ છે, એક હાથથી તમે અગર તમારું ભાગ્ય લખો છો તો એ સમયે તમારો બીજો હાથ બાબાના હાથમાં હશે તો કલમવાળા હાથેથી ભાગ્ય લખી શકશો। અગર બાપનો હાથ છૂટી ગયો તો ભાગ્ય લખી શકતા નથી। તો બાબા ભાગ્ય વિધાતા બને અને આપણા હાથમાં ભાગ્ય લખવાની કલમ બી આપી દે છે। भाग्य की लकीर जितना लंबी खींचने चाहो उतना खींच लो। बाबा ए चांस आप्यो छे કે ભાગ્યની જે લકીર છે એને જેટલી લાંબી ખીંચવી એટલી ખીંચી લો। અત્યારનો સમય છે, પછી ક્યારે આવો ચાન્સ મળશે નહીં। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दे दी है और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। हाँ, बाबा ने अगर सदायने माटे साथी बनाव्या हशे, बाबानी हरेक सेकंडे आपणे याद करीशुं तो अगर माया भी आवशे तो बाबा शुं करशे? छत्र छाया बनी आपणी उपर एक रक्षा कवच बनावी देशे जे मायाथी आपणुं रक्षण करशे। जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान भी क्या करेगा। જેવી રીતે આપણે મકાનમાં બેઠા હોય તો ઉપર છત્ર છાયા છે તો બહાર ગમે તેટલો વરસાદ આવે કે ગમે તેટલું વાવાઝોડું આવે આપણે શું કરશે? તો એવી રીતે અગર બાબાની છત્ર છાયામાં હશું તો માયાના ગમે તેટલા તૂફાનો આવશે તો એ કંઈ કરી શકતું નથી। सेवाधारी भी बनाते लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते जिससे नाम बच्चों का काम बाप का सहज हो जाता है। हाँ, बाबा ने क्या कहा कि बाबा तब आपने सेवाधारी बनावे छे અને સેવાદારી બનાવીને આપણે જ્યારે સેવા કરવા જઈએ છીએ તો બાબા આપણી સાથે બુદ્ધિવાનોની બુદ્ધિ બનીને આપણી બુદ્ધિમાં બેસી જાય છે અને આપણી બુદ્ધિ દ્વારા કર્મ કરાવે છે કે હવે જે બોલવાનું છે બાબા બુદ્ધિવાનોની બુદ્ધિ બની અને આપણી બુદ્ધિને ટચિંગ કરાવશે કે અહીંયા આ રીતે સેવા કરો તો સફળતા મળશે અને એ રીતે સફળતા મળતી હોય છે। તો એમાં નામ કોનું રોશન થાય? નામ બાળકોનું અને કામ બાપનું। કામ બાબા કરે, ટચિંગ કરાવવાનું કામ કોણ કરશે? બાબા કરશે। આપણને ઈશારો આપવાનું કામ કોણ કરે છે? બાબા કરે છે। બાબા કહે છે અહીંયા સેવા કરો તો સફળતા મળશે, તો કામ બાબા કરે।
પણ નામ રોશન જે સેવા કરે એનું થતું હોય। तो इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए, पालना करते, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं। पाँव नीचे रखने नहीं देते। हाँ, बाबा बाळकोने सदायने झूलोमां झूलावता रहे छे। बाबा कहे छे नीचे पाँव रखवानी जरूरत ज नथी, बस झूलता ज रहो। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में। हाँ, बाबा कया कया झूलामां झूलावे छे? कभी खुशी के तो कभी सुख के झूले में, तो कभी आनंद के झूले में, तो कभी शांति के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में। कितने झूले में झूलाते हैं? हाँ, क्यारेक बाबा खुशीना झूलामां, क्यारेक सुखना झूलामां, क्यारेक बापनी गोदमां, क्यारेक आनंद प्रेम शांतिना झूलामां झूलावता रहे छे। तो बाबा कहे छे नीचे तो पछी पग रखवानी जरूरत ज नथी, झूलता रहो। झूलना अर्थात मौज मनाना। बाबा ने झूलना किसको कहा? माना खुशी में रहना, मौज में रहना। यह सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहमदिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है? जानते हो ना? हाँ, बाबा तो अत्यारे एकનું પદમ ગુણ આપે છે। બાબા કહે છે અત્યારે હું કોઈ હિસાબ કિતાબ જોતો નથી, બસ આપતો જ રહું છું, આપતો જ રહું છું। अंतना समय हिसाब किताब चुकतू करने वाले समय आएगा, और उस समय बाबा अपने साथी का साथ लेगा। कौन है साथी जानते हो? कौन है साथी? धर्मराज। फिर यह एक का पदम गुणा का हिसाब समाप्त हो जाएगा। अभी रहमदिल है, फिर हिसाब किताब शुरू होगा। अत्यारे बाबा रहमदिल बनी, दयाळु कृपाळु बनी बस आपता ज रहे छे। पछी शुं करशे? हिसाब किताब केटलुं कर्युं हतुं, केटलुं भोगव्युं, केटलुं प्राप्त कर्युं हतुं, बाबाए आप्युं केटलुं हतुं अने एना बदलामां तमे केटलुं कर्युं, तो ए हिसाब किताब पछी थशे। अत्यारे तो खाली बाबा आपे ज छे। इस समय तो माफ भी कर देते। कड़ी भूल को भी माफ कर और ही मददगार बन आगे उड़ाते हैं। सिर्फ दिल से महसूस करना और माफ होना। अत्यारे बाबा माफ भी करी दे छे। हाँ, बाबा कहे छे तमे अगर पाप कर्म कर्युं तो एनी मारी आगळ दिलथी महसूस करो अने मने बतावी दो तो हूँ माफ भी करी देतो हों छुं। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं, यहाँ उस रीति से माफी नहीं लेनी होती। महसूसता की विधि ही माफी है। बाबा कहे छे अंदर थी महसूस करो कि आपणाथी आ भूल थई गई, तो बाबा माफ करी देशे। तो दिल से महसूस करना किसके कहने से या समय पर चलाने के लक्ष्य से नहीं। यह माफी मंजूर नहीं होती। कोईए कह्युं, कोईए समझाव्युं, पछी महसूस कर्युं, पछी बाबा पासे माफी मांगी तो बाबा कहे छे ए माफी मंजूर नहीं होती। पोतानी जाते महसूस करो अने पोतानी जाते माफी मांगो। कई बच्चे चतुर भी होते हैं। वातावरण देखते हैं तो कहते हैं अभी तो महसूस कर लो, माफी ले लो, आगे देखेंगे। हाँ, बाबा ना बाळको भी बाबा कहे छे
કે મેં એકલા ચતુર સુજાન બનાવ્યા છે, બુદ્ધિવાનોની બુદ્ધિ આપી છે સેવા માટે, પણ લગાવે છે મારી વિરુદ્ધ જ. હા, હું જે સમજાવું છું વિરુદ્ધમાં જ્ઞાન મને જ આપી દે છે. બાબાએ કહ્યું અગર કોઈ વિકર્મ થઈ જાય તો મહેસૂસ કરીને એની માફી માંગી લો. પણ બાળકો શું કરે છે? શું કરે છે કે અત્યારે સમય છે, માફી માંગી લીધી, પછી આગળ જોયું જશે. બાબાએ કહ્યું માફી માંગવી, મહેસૂસ કરવું, માને જે ભૂલ થઈ છે તો એ ભૂલ બીજી વાર ન થાય એને કહેવાય મહેસૂસ થાય. દરેક વખત ભૂલ કર્યા કરે, દરેક વખત માફી માંગ્યા કરે તો બાબા કહેશે ક્યાં સુધી માફી મળશે? तो लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, जानते हैं, फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं. बाबा भी जाने છે બાળકોની ફિતરત કે બાળકો કેવા છે, મારી આગળ કેવી બહાનાબાજી કરે છે, કેવી દલીલો કરે છે, બાબાને બી ખબર છે. તો બાબા શું કરે? બાળકોની દલીલો સાંભળે, મુસ્कुराते हैं, फिर छोड़ देते हैं. लेकिन माफी मंजूर नहीं करते. बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेंगी ना. विधि एक कदम की और सिद्धि पदम कदम जितनी होती है, लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ होना. બાબા કહે છે એક કદમ તમારું તો પદમ કદમ મારા, એ 100% છે, પણ એક કદમ ઉઠાવવાની વિધિ બી યોગ્ય હોવી જોઈએ. વિધિ જ યોગ્ય ના હોય તો બાબાની મદદ ક્યાંથી મળશે? પછી કે બા હું તો કરું છું સેવા, બાબા મદદ જ નથી કરતા. પણ બાબા કહે છે યોગ્ય વિધિથી કર્મ કરો ને. तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी कैसे समय है यह सुनाए. तो બાબાએ સમયની વિશેષતાઓ બતાવી કે આ સમય કેટલી પ્રાપ્તિ છે. એકની પદમ ગુણા પ્રાપ્તિ થતી હોય છે. બાબા ત્રણેય સ્વરૂપમાં પ્રાપ્તિ કરાવે છે. બાપના સ્વરૂપમાં વારસાની, શિક્ષકના સ્વરૂપમાં પઢાઈનો વારસો આપે છે, સદગુરુના સ્વરૂપમાં વરદાનોનો વારસો આપી રહ્યા છે. અને આ સમયે તમે એક કર્મ કરો છો તો પદમ ગુણા તો મળે છે, સાથે અત્યારે બાબા કોઈ હિસાબ કિતાબ રાખતા બી નથી. તો કેટલી વરદાની સમય છે, કેટલી પ્રાપ્તિ છે સંગમ યુગની. तो वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे? અત્યારે ભગવાન આટલા બધા વરદાન આપી રહ્યા છે, અગર આ સમય તમે વરદાન નહીં લો તો પછી બાબા કહે છે ક્યારે લેશો? સમય પૂરો થઈ જશે પછી. અને સતયુગમાં તો જેટલા તેટલાનો હિસાબ લાગી જશે, પછી તો કોઈ वरदान ले सकता भी नहीं. समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण यह समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी. इसीलिए जो करना है, जो लेना है, जो बनना है, वह अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो. અત્યારે બાબા મદદ કરે છે, હર સેકન્ડ આપણા મદદગાર છે. તો બાબા કહે છે જે બનવું હોય, જે લેવું હોય, જે કરવું હોય આ સમય કરો. फिर यह डायमंड चांस नहीं मिल सकता. બાબાએ સમયની ચેતવણી બી આપી દીધી. પછી જો સમય જતો રહ્યો અને પછી જો કરવા માંગશો તો કંઈ નહીં થાય. જે કરવું હોય અત્યારે કરી લો. समय की विशेषताएं तो सुनी ना. समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो. कौन सी 3 विशेषताएं? पहली ज्ञानी तू आत्मा, दूसरी योगी तू आत्मा और तीसरी बाप समान कर्मातीत और संपूर्ण. तो तीनों विशेषताओं में संपूर्ण बनो. आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है.
યોગી બનો પવિત્ર બનો. કઈ સ્લોગન આપે છે? યોગી બનો પવિત્ર બનો, જ્ઞાની બનો કર્માતીત બનો. 3 विशेषताओं आधारे स्लोगन છે. जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे. खबर तो છે બાબાની સાથે જવાનું છે, તો સાથે કોણ જઈ શકશે? તો બાબા કહે છે જે સંગમમાં સદા બાપના સાથનો અનુભવ કરે છે એ બાબાની સાથે સાથે એમનો હાથ પકડીને જઈ શકશે. जो सदा साथ नहीं रहते वह साथ कैसे चलेंगे? समय पर तैयार ही नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है. तो बाबा કહે છે સમય પર અગર બાપની સાથે ચાલવા માટે તૈયાર નથી થયા તો પછી બાબા શું કરશે? બાબા કહે છે હું સાથે લઈ જઈશ, નહીં લઈ જાઉં. तो समय पर ही तैयार नहीं होंगे तो साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना. समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा? आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो यह साथी नहीं हुए. बाबा કહે છે પાછળ પાછળ આવવાવાળા સાથી ના કહેવાય, મારી સાથે કદમ કદમ ચલવાવાળાને સાથી કહેવાય છે. तो साथी तो साथ चलेंगे, बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, यह बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा. आ संगम युगनो जे संस्कार हशे, संगम युगमां આપણે જે સંગમ યુગના સમયગાળા દરમિયાન બાબાને સાથી બનાવ્યા હશે તો અંતમાં આપણે બાબાની સાથે રહી શકીશું. अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है कि दूर रहते हैं. तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा. इसीलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो. અને બાબાની સાથે કોણ રહી શકે? જે બાપ સમાન બને તે. તો બાબા કહે છે બાપ સમાન બનો, જ્ઞાની બનો, યોગી બનો. तो ये तीनों ही विशेषताएं चेक करो. बाप के सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो. करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूँ. बाप के साथ का अनुभव माना करण करावनहार करा रहा है, निमित्त में कर रहा हूँ. तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएंगी. निमित्त बनीने सेवा करीशु तो ये सेवा क्यारे हलचल में लावशे नहीं. जहाँ अकेले हो तो मैपन में आ जाता है, फिर माया बिल्ली मियाओ मियाओ करती है. अकेले अकेले सेवा करते हो तो सेवा में हलचल आ जाएंगी, क्योंकि बाप को साथ में नहीं लिया तो सेवा में सफलता कैसे मिलेंगी? फिर क्या होगा? माया आएंगी बिल्ली की तरह. आप मैं करते, वे कहते मैं आऊं मैं आऊं. आप मैं करते रहते हैं कि मैं सेवा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ. तो बाबा કહે છે તમે मैं करो. तो बिल्ली भी શું કહે છે? તમે मैं करशो तो हूँ एम पूछीश मैं आऊँ. माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो. कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है.
वह फिर कभी सुनाएंगे। हाँ, બાબાને કર્માતીત બનવાની બાબા કહે છે પરિભાષા બડી ગુહ્ય છે, એ પછી ક્યારેક સંભળાવીશું। आज सिर्फ यह 3 बातें चेक करना है। कौन सी? हाँ, बाबा ने 3 बातें चेक करने को बोला। पहली, साथ रहने वाले, तो बाबानी साथे के कोण रही शकशे? जे सहज योगी तो आत्मा ए छे ए बाबानी साथनो अनुभव करे छे। बीजू, सेवा में सहयोगी, साथी माना ज्ञानी तो आत्मा, और सदा साथ चलने वाले माना बाप समान कर्मातीत। तो बाबा कहते आज सिर्फ यह 3 बातें ही चेक करना है कि हम कहाँ तक पहुँचे। ज्ञानी तो ही है, माना सेवा में सहयोगी ही है, या आगे योगी तो आत्मा बने हैं, बाप के साथ का अनुभव कर रहे हैं, या बाप को सदा साथ लेकर चलते हैं, कहाँ तक बने हैं, तो ये चेक करो। और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है। समयनी विशेषताओं आटली बधी छे तो बाबा कहे छे एनो लाभ भी केटलो लीधो छे ए भी चेक करो। क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना। स्वयं को जानना, बाप को जानना जितना यह महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। आत्मा ने ओळखवी ए भी जरूरी छे, परमात्मा ने ओळखवा ए भी जरूरी छे। तो बाबा कहे छे एनी साथे साथे समयना महत्वने जाणवुं ए भी जरूरी छे। कारण के समयना महत्वने नहीं जाणी तो पुरुषार्थ कई रीते करीशुं। तो समझा क्या करना है। बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। बाबा रिजल्ट काढे ए पहला पोतानुं चेकिंग स्वयं करी लो। जेवी रीते बाळको पेपर लखीने आवे ने तो शुं करे, पेपर लखीने आवीने घरे चेक करता होय केटलुं लख्युं छे, केटला साचा पड़शे, केटला मार्क्स आवशे, ए चेकिंग पहला स्वयं करी लेता होय। पछी रिजल्ट आवे तो अंदाज रहे कि मैं आटलुं लख्युं तो केम आटला ओछा मार्क्स आवे, तो पछी रीचेकिंग करावे तो मार्क्स वधता होय छे ने। तो एवी रीते पोतानुं चेकिंग पहला करी लो बाबा कहे छे, पछी बाबा रिजल्ट सुनावशे, रिजल्ट संभळावशे। तो आप अपना रिजल्ट निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे कि अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करें। बाबाए अगर रिजल्ट जाहिर करी दीधुं पछी विचार करीशुं कि हवे तो एनाउंस थई गयो, हवे शुं करीए। अगर अत्यारथी चेक करीशुं तो पुरुषार्थ करी लईशुं। अब जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ, कारण के हवे तो कोई पुरुषार्थ थशे नहीं, कारण के बाबा छेल्ले ज रिजल्ट आपशे। इसीलिए फिर भी बाप दादा कहते यह चेक करो, यह चेक करो। बाबा चेक करने के लिए बोलते हैं। यह इन डायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं। बाबा अलग अलग पॉइंट्स द्वारा अपनी जे चेकिंग करावे छे ने ए चेकिंग में बाबा इनडायरेक्ट रिजल्ट बतावी रह्या छे कि आपणे केटलामां छीए। आजे बाबाए 3 विशेषताओं चेकिंग कराव्युं तो आपणे 3 विशेषताओने केटला सुधी ग्रहण करी छे, तो आपणे तो खबर पड़ी गई कि आपणे केटला बापनो साथनो अनुभव करीए छीए, दिवसमां केटलो समय करीए छीए बापनी साथनो अनुभव, बीजું કેટલી સેવા કરીએ છીએ, સેવાધારી કેટલા છીએ, ત્રીજું બાપની સદા સાથે રાખી હર કર્મ કેટલો સમય કરીએ છીએ। અને જ્ઞાની તું આત્મા, યોગી તું આત્મા, કર્માતીત અવસ્થા વાળી આત્મા કहाँ तक बने। तो स्वयं चेकिंग करीशुं तो बी रिजल्टनी खबर पड़ी जशे कि आपनुं केटलुं रिजल्ट छे।
क्योंकि बाबा इनडायरेक्ट ही रिजल्ट सुना रहे हैं, क्योंकि पहले से कहा हुआ है कि रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया। फिर कई यही सोचते हैं कि 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं। लेकिन बताया ना कि अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्रगुप्त गुप्त है, अभी चित्रगुप्त कहाँ है? गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसीलिए फिर भी बाप को रहम आता है। चलो 1 साल और दे दो, फिर भी बच्चे हैं ना। बाबा ने दया आवे छे कि पहला आटलो पुरुषार्थ कर लीधो, हजू तो हजू समय ले लो, हजू तैयार थई जाओ। बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला ही बनाते रहते हैं। भगवान ने भोला ना समझे छे तो कई કેટલાક બાળકો છે ભગવાનને ભોળા જ બનાવતા રહે છે। ભોળા એટલે બાપની આગળ બહાનાબાજી करता रहे छे। भोलानाथ तो है लेकिन महाकाल भी है। हाँ, बाबा भोलानाथ तो छे पर महाकाल भी छे। क्यारेक महाकाल स्वरूप लई लेशे खबर ही नहीं पड़े। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते, नहीं तो सामने खड़े ही नहीं हो सकते हो। अगर बाबा महाकाल बनी जाए तो बाबा नी सामे उभा रहवानी हिम्मत भी नहीं रहे। इसीलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा बाबा भोलानाथ केम बने छे? बाळकोने हजी रहम दिल करें कि बाळको संपूर्ण तो बनी जाए। बाप दादा यह सब नजारे देख मुस्कुराते रहते हैं, क्या क्या खेल करते रहते हैं, सब देखते रहते हैं। इसीलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्व योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान, महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंध का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात। सदा अपने को सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं अनुभव करते हो। क्या पूछा? कि सदा अपने को माने सदैव पोतानी जातने सर्व शक्तिओथी संपन्न अनुभव करो छो। बाप ने सर्व शक्तियों का खजाना तो वर्षे में दिया है। बाबा ने सर्व शक्तिओं खजानो तो आप्यो छे। तो सर्व शक्तियां अपना वर्षा अर्थात खजाना है। अपना खजाना साथ रहता है ना। बाप ने दिया तो बच्चों का हो गया, तो सदा साथ रहना चाहिए। तो जो चीज अपनी होती है वह स्वतः याद रहती है। वह जो भी चीजें होती हैं वह विनाशी होती हैं और यह वर्षा व शक्तियां अविनाशी हैं।
तो आज वर्षा मिला कल समाप्त हो जाए ऐसा नहीं है। बाबा ने जे सर्व शक्तिओनो वारसो आप्यो छे, तो बाबा कहे छे आ वारसो एवो नथी कि आजे मळ्यो ने काले समाप्त थई जशे। आ तो सदाकाल माटे छे। आज खजाने हैं, कल कोई जला दे, कोई लूट ले, ये ऐसा खजाना नहीं है। जितना खर्चा उतना बढ़ने वाला है। जितना खर्चो उतना बढ़े, ऐसा कोई खजाना है? ये बाबा का खजाना है, शक्तियों का खजाना है कि जेटली शक्तिओनो उपयोग करशो एटली वधशे। जितना ज्ञान का खजाना बांटो उतना ही बढ़ता रहेगा। सर्व साधन भी स्वतः ही प्राप्त होते रहेंगे। तो सदा के लिए वर्षे के अधिकारी बन गए। यह खुशी रहती है ना। वर्षा भी कितना श्रेष्ठ है। कोई अप्राप्ति नहीं, सर्व प्राप्तियां हैं। अच्छा, अमृत वेले विदाई के समय दादियों से तथा दादी निर्मल शांता से बाप दादा की मुलाकात। माना निर्मल शांतामणि दादी बाबा से मिलने आई थी और फिर सेवा में जा रही थी, तो बाप दादा से मुलाकात। महारथियों के हर कदम में सेवा है। चाहे बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन हर कर्म हर चलन में सेवा है। जे महारथी आत्माओं छे एमना हर कर्ममां महारथी माना जे अपनी दादीओ छे, पछी जे वडील भाईओ छे, जे वडील टीचर्स बहनों छे, तो बाबा के छे महारथीओना हर कर्मनी अंदर सेवा छे। चाहे ये बोले चाहे न बोले, सेवा बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकता। चाहे मनसा सेवा में हो, चाहे वाचा सेवा में, चाहे संबंध संपर्क से, लेकिन निरंतर योगी भी है तो निरंतर सेवाधारी भी है। अच्छा है, जो मधुबन में खजाना जमा किया वह सभी को बांट के खिलाने जा रही हूँ। बाबा निर्मल शांतामणि दादी ने बात करे छे कि माउंट आबू आव्या था अने जे ज्ञाननो खजानो जमा कर्यो ए हवे जईने बधाने आपो। महारथियों का स्थान पर रहना भी अनेक आत्माओं का स्थूल सहारा हो जाता है। जैसे बाप छत्र छाया है, ऐसे बाप समान बच्चे भी छत्र छाया बन जाते हैं। सभी देख करके कितने खुश होते हैं। तो यह वरदान है सभी महारथियों को। आंखों का वरदान, मस्तक का वरदान, कितने वरदान हैं। जे मोटा मोटा अपना जेमनी तपस्याओ घणा वर्षोनी तपस्या छे, तो एमनी आंखोनी दृष्टि भी एक सेवानुं कार्य करे छे, ए भी वरदानी होय छे। हर कर्म करने वाली निमित्त कर्मेंद्रियों को वरदान है। नयनों से देखते हो तो क्या समझते हैं? सभी समझते हैं ना कि बाप की नज़र इन आत्माओं की नज़र से अनुभव होती है। જ્યારે આપણી દાદીઓને મળતા હોય તો એ અનુભવ થતો હોય ને કે દાદીઓની આંખો દ્વારા જાણે બાબા દ્રષ્ટિ આપી રહ્યા હોય, એ અનુભવ થાય છે। तो नयनों को वरदान हो गया ना, मुख को वरदान है, इस चेहरे को वरदान है, कदम कदम को वरदान है। कितने वरदान हैं, क्या गिनती करेंगे। माटे देवी देवताओना हरेक अंगने कमल पुष्प समान बतावाय छे। माना नयन कमल, मुख कमल, हस्त कमल, पाद कमल, एक एक अंगने कमल साथे सरखामणी करी छे। माना संगम युग में एक एक अंग द्वारा ए वरदानी मूर्त आत्माओथी सेवा थती होय छे। तो बाबा कहते क्या गिनती करें, औरों को तो वरदान देते हैं,
लेकिन आपको तो पहले से ही वरदान मिले हुए हैं। जो भी कदम उठाओ वरदानों से झोली भरी हुई है। ने बाबाए आज तो वरदान आपी दीधा ने, કેટલા બધા વરદાન આપ્યા। એક કદમ ઉઠાવો પદમ ગુણા શક્તિ મળશે, પદમ ગુણા બાપની મદદ મળશે। जैसे लक्ष्मी को दिखाते हैं ना, उसके हाथ से धन सभी को मिलता ही रहता है। माना लक्ष्मी जी के हाथ में कलश दिखाते हैं जिसमें धन दिखाया है, बांटते ही रहते हैं। थोड़े समय के लिए नहीं, सदा संपत्ति की देवी बन संपत्ति देती ही रहती है। तो यह किसका चित्र है? बाबा कहते ये किसकी यादगार है? ये आपकी तो यादगार है कि आप संगम युग में वरदानी मूर्त बन वरदान बांटते रहते हैं। तो कितने वरदान हैं? बाप तो कहते हैं कोई वरदान रहा नहीं है। तो फिर क्या थे? वरदानों से ही सजे हुए चल रहे हो। जैसे कहते हैं ना, हाथ घुमाया तो वरदान मिल गया। तो बाबा ने तो समान भव का वरदान दिया। कोई वरदान आप्યું છે? समान भव माना बाप समान बनो। इससे सब वरदान मिल गए। जब बाप अव्यक्त हुए तो सभी को समान भव का वरदान दिया ना। सिर्फ समान वालों को नहीं, सिर्फ सामने वालों को नहीं, सभी को वरदान दिया था। જ્યારે બ્રહ્મા બાબા અવ્યક્ત થયા તો બ્રહ્મા બાબાએ એમની સામે બેઠાના એકલાને જ નહીં કે સમાન ભવ, બધાને વરદાન આપ્યું તું સમાન ભવનું। सूक्ष्म रूप में सब महावीर बाप के सामने रहे और वरदान मिला। अच्छा, आप लोगों के साथ सभी की दुआएं और दवाई है, इसीलिए बड़ी बीमारी भी छोटी हो जाती है। सिर्फ रूपरेखा दिखाई देती है, लेकिन अपना दाव नहीं लगा सकती। यह सूली से कांटे का रूप दिखाती है, बाकी तो बाप का हाथ और सदा साथ है ही। हर कदम में, हर बोल में बाप की दुआ दवा मिलती रहती है। इसीलिए बेफिक्र रहो। इससे फ्री कब होंगे? ऐसे फ्री हो जाओ तो फिर सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। इससे औरों को भी बल मिलता है। यह बीमारी भी आप लोगों की सेवा करती है। જ્યારે ગુલઝાર દાદી અંતિમ સમય બીમાર હતા ને, તો હોસ્પિટલમાં હતા, તો ગુલઝાર દાદી માટે કહેવાયું કે ગુલઝાર દાદીની બીમારી બી સેવા કરતી હતી। એ હોસ્પિટલમાં હતા તો જે હોસ્પિટલના ડૉક્ટરો હતા, ભલે એ ભાષણ નહોતા કરતા, ભલે પથારીમાં હતા, પણ ડૉક્ટરો એમની ટ્રીટમેન્ટ કરતા હતા, છતાંય દાદી દ્વારા એ ડૉક્ટરોની સેવા થતી। તો બાબા કહે છે મહારથી આત્માઓની બીમારી બી સેવા કરે છે। तो बीमारी बीमारी नहीं है, सेवा का साधन है। नहीं तो और सब समझेंगे कि इन्हों को तो मदद है, इन्हों को अनुभव थोड़ी ही होता है। लेकिन अनुभवी बनाए औरों को हिम्मत दिलाने की सेवा के लिए थोड़ा सा रूपरेखा दिखाती है, नहीं तो सभी दिल शिकस्त हो जाए। आप सभी एग्जाम्पल रूप से थोड़ी रूपरेखा देखते, बाकी चुप तो हो गया, सिर्फ रूपरेखा मात्र हुआ है। अच्छा, विदेशी भाई बहनों से दिल से हर आत्मा के प्रति शुभ भावना रखना, यही दिल की थैंक्स है। हाँ, दिल से थैंक्स माना सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखना। बाप की हर कदम में हर बच्चे को दिल से थैंक्स मिलती रहती हैं।
संगम युग को सर्व आत्माओं के प्रति सदा के लिए थैंक्स देने का समय कहेंगे। संगम युग पूरा ही थैंक्स डे है। कयो समय छे? थैंक्स डे। सदा एक दो को शुभकामना शुभ भावना देते रहो और बाप भी देते हैं। बाबा कहे छे हूँ भी बधाने शुभ भावना शुभकामना वाइब्रेशन आपू छू, तमे भी आपता रहो। अच्छा, वरदान खुशी के साथ शक्ति को धारण कर विघ्नों को पार करने वाले विघ्नजीत भवम। जो बच्चे जमा करना जानते हैं वह शक्तिशाली बनते हैं। यदि अभी अभी कमाया अभी अभी बांटा स्वयं में समाया नहीं तो शक्ति नहीं मिलती। सिर्फ बांटने का व दान करने की खुशी रहती है। खुशी के साथ शक्ति हो तो सहज ही विघ्नों को पार कर विघ्नजीत बन जाएंगे। तो बाबा के छे ज्ञान लईने पछी तरत आपी देवुं तो आपी दीधुं एनी तो खुशी छे, पण ए ज्ञानने पोतानी अंदर समावीशुं तो शक्ति मळशे ने। खाली आपवाथी शक्ति नहीं मळे, आपवाथी तो खाली खुशी मळे छे, पण खुशीनी साथे साथे शुं जोईए? शक्ति भी जोईए। तो ए जे प्राप्ति करो छो ए पोतानी अंदर समावो अने समावीशुं तो शक्ति मळशे अने ए शक्ति थी ज विघ्नजीत बनी शकाय छे। फिर कोई भी विघ्न लगन को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसीलिए जैसे चेहरे से खुशी की झलक दिखाई देती है ऐसे शक्ति की झलक भी दिखाई दे। स्लोगन, परिस्थितियों में घबराने के बजाय उन्हें शिक्षक समझकर पाठ सीख लो। क्या कहा? परिस्थितियों में घबराना नहीं है। कारण के कहेवाय छे ने ऊंचा में ऊंचुं शिक्षण शुं छे? अनुभव ए ऊंचा में ऊंचो शिक्षक छे अने अनुभव परिस्थितिओं में मळतो होय छे। जेटली आपणी सामे परिस्थितिओ वधु आवे छे एने पार करता करता आत्मा एटली अनुभवी बनी जाय छे के एने बीजा कोई शिक्षणनी जरूर रहती નથી। अच्छा, ओम शांति।